एक स्कूल का मेरा फ्रेंड है, उसने भी मुझसे पर्सनली ये पूछा, तो आई वॉज लाइक वेरी श्योर कि हाँ मुझे वीडियो करना है. Oh hi, how are you? It's quite a trend nowadays. I'm talking about fitness bands. And why not? These kind of accessories take your fitness level to the next level. And here are the reasons you should buy fitness band. Mainly there are three reasons to buy a fitness band. First one is to track your progress, your workout sessions. Second one is a source of motivation. Third and the last one is better lifestyle, which definitely I will be talking about in the later part of this video. Here I am assuming you own at least one single fitness band, and you know the basic things like pairing your fitness band with your fitness app. Personally, for the sake of this video, I am using MI Fitness Band and MI Fitness app to explain this video about how to use fitness bands effectively and efficiently at same time. As we have talked in the beginning of the video about the reasons to buy a fitness band, अभी हम बात करेंगे उन रीजंस के बारे में. सो लेट्स टॉक अबाउट tracking progress. How to track your progress by reading and manipulating the parameters like total steps, calories burned, stride, cadence, and other various parameters. Let's start with the first parameter, which is a calorie. A calorie is a unit of energy which provides energy to our body. So with the fitness band and fitness app, जब आप कोई भी वर्कआउट कंप्लीट करते हो, चाहे वो रनिंग हो, ट्रेडमिल हो, आउटडोर साइकिलिंग हो, वर्कआउट के एंड में वो आपको आपके कैलोरीज बर्न शो करता है कि आपने पूरे वर्कआउट में कितनी कैलोरीज बर्न की थी. Let's talk about the second parameter, which is total steps. Every fitness band shows you the total distance covered in the form of steps. आपके दिन के एंड में जितने भी आपने नंबर ऑफ स्टेप्स कवर किए होंगे, फॉर एग्जांपल 8000, 10000, वो आपको आपके फिटनेस बैंड के LCD स्क्रीन पे शो करेगा. नाउ हियर इज अ फैक्ट. Every single individual should cover at least 8000 steps for a healthy body. तो आपको हर दिन कम से कम 8000 स्टेप्स कवर करने ही हैं. 8000 स्टेप्स से मेरा मतलब है इट्स अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स. तो आपको इतना चलना है एक हेल्दी बॉडी के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, द थर्ड पैरामीटर विच इज स्ट्राइड. स्ट्राइड इज अ डिस्टेंस इन सेंटीमीटर between your heel of your first leg to the heel of your second leg. Another important parameter is cadence. What is cadence? Cadence generally are the number of steps you take in 1 minute. 60 seconds में आप जितने भी steps लेते हो वो आपका cadence होता है. The fourth point is pace. What is pace? 1 किलोमीटर को कवर करने में जितना टाइम आपको लगता है, that is your pace. Here on the screen, we will be analyzing the graph of stride, pace and cadence. How they look. The first graph, which is on the left side, shows the details of pace, cadence and stride. Now on the right side, second graph also shows same three things, that is pace, cadence and stride. अगर आप ग्राफ को देखो तो दोनों के ग्राफ जो हैं वो बहुत ही अलग हैं. So if we compare both the graphs, we can see the pace in graph 1 is uniform compared to the graph second. तो अगर हम इस ग्राफ को एनालाइज करें तो हम कह सकते हैं कि कैडेंस बेटर वो होगा, मतलब सही वो होगा जो यूनिफॉर्म है, जो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा. तो पेस में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, कैडेंस में भी यूनिफॉर्मिटी चाहिए. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. हाउ कैन वी मेक अवर वर्कआउट इफेक्टिव? वी कैन मेक अवर वर्कआउट इफेक्टिव बाय मैनिपुलेटिंग 3 पैरामीटर्स विच आर कैडेंस, स्ट्राइड एंड पेस. लेट्स टॉक वन बाय वन. पहले हम बात करेंगे स्ट्राइड की. स्ट्राइड आपकी क्या होनी चाहिए? अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ. जो स्ट्राइड होता है वो आपके हील टू हील के बीच का डिस्टेंस होता है, आपके दोनों पैरों के बीच का. तो आपको स्ट्राइड वो रखनी है जो कंफर्टेबल है. जब आप दौड़ रहे हो तो आपको उतने स्टेप्स रखने हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है दौड़ने में. अगर कोई कहता है कि स्ट्राइड ज़्यादा होगी तो अच्छा होगी, डेफिनेटली हाँ, अगर स्ट्राइड ज़्यादा है तो अच्छी है, बट वो कंफर्टेबल होनी चाहिए. आपका जो फ्रंट लेग जो आगे जा रहा है वो आपके सेंटर ऑफ मास पे लाई करना चाहिए. आपकी जब बॉडी स्ट्रेट है तो आपका जो फ्रंट लेग है वो आपके बॉडी से ज़्यादा आगे नहीं आपको फेंकना है, आपको एकदम बराबर फेंकना है. तो इससे यही चीज़ आपको लेनी है कि स्ट्राइड आपका वो होना चाहिए जो कंफर्टेबल है. अभी आपको स्ट्राइड को छेड़ना नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट विच इज़ कैडेंस. जैसे कि मैंने बताया था, कैडेंस जो होता है वो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं 1 मिनट के अंदर. तो जब आप अपना वर्कआउट खत्म करते हो आपको कैडेंस के ग्राफ को एनालाइज करना है.
उसमें जो ग्राफ आ रहा है, जैसे कि अगर यहाँ पे आप ग्राफ देखो, इसका हाई पॉइंट है, उसका एक लो पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, उसके बीच में एक एवरेज वैल्यू है। तो आपको उस वैल्यू को नोटिस करना है और आपको उसके अराउंड अपना कैडेंस रखना है। आपने 1 महीना वर्कआउट किया, कंफर्टेबल स्ट्राइड लिया, उस स्ट्राइड के अकॉर्डिंग आपने अपना कैडेंस कैलकुलेट किया, उस कैडेंस पे आपने दौड़ा। 1 महीना हुआ, आपके 10 से 15 सेशंस हुए, आपने हर सेशंस में अपना कैडेंस देखा। अभी आप नेक्स्ट महीना मसल मैच्योरिटी के साथ अभी आप अपना कैडेंस को इम्प्रूव करो। द मोमेंट आप नेक्स्ट मंथ ऑन सेकेंड मंथ जब आप अपना कैडेंस बढ़ाना स्टार्ट करते हो तो आपकी पेस इम्प्रूव हो जाएगी। जब आप वो करना स्टार्ट करते हो उसको फॉलो करो, अपने ग्राफ को एनालाइज करो। अगर आप सक्सेसफुली अपना कैडेंस इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो आप अपने स्ट्राइड पे मैनिपुलेशन कर सकते हो। बट अगर आप देख रहे हो कि मैं कैडेंस बढ़ा रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं कर पा रहा, एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, तो अगेन स्टिक टू दैट बेसिक, उसी कैडेंस पे स्टिक रहो। जब तक आप कैडेंस बढ़ा के उस बढ़ी हुई वैल्यू पे कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक आपको अपने स्ट्राइड को नहीं छेड़ना। एक बार आपका वो 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद आप सेकेंड मंथ में आपने कैडेंस को बढ़ाया, नंबर ऑफ स्टेप्स जो आप दौड़ रहे हो उसको आपने बढ़ाया और उस पर आप कंफर्टेबल हो। अभी आप अपने स्टेप्स, स्ट्राइड जो मैंने बोला 2 पैरों के बीच का डिस्टेंस, अभी आप तीसरे महीने में आप अपने स्ट्राइड को बढ़ा सकते हो। तो मैंने पर्सनली दौड़ना स्टार्ट किया था अराउंड 1 साल, मैंने आपको बताया, बट मैं दौड़ता था 1.5 टू 1.8 किलोमीटर, लाइक 2 किलोमीटर से भी कम दौड़ पाता था, जस्ट बिकॉज कि मैं प्रोफेशनल नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी। तेज़ दौड़ते थे, फिर थक जाते थे, फिर जाके बॉडी वेट वर्कआउट करते थे। बट अभी मैं 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर एक ही स्ट्रेच में दौड़ता हूँ और बिलीव नहीं करोगे, ट्रैकिंग की वजह से ह्यूजली इम्पैक्ट हुआ है फिटनेस बैंड्स का मेरे लाइफ में। फिटनेस बैंड आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि आपको किस तरीके से अपनी ग्रोथ करनी है। क्योंकि मैं जहाँ 1 किलोमीटर दौड़ता था, अभी मैं 5 से 7 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच दौड़ता हूँ। और मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि आपको कोई सुपर एक्सपेंसिव फिटनेस बैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मल रनिंग करनी है, आप रनिंग के एंथुसियास्ट हो, आप सिंपल 15 से 2000 वाला भी आप फिटनेस बैंड लेके सब चीज़ें ये उसमें इनकलकेट करके अपने वर्कआउट को इफेक्टिव बना सकते हो। और मैं इसी से आप लोगों को पूछना चाहूँगा कि आप अगर फिटनेस बैंड के बारे में आप वीडियो देख रहे हो तो आपने भी वर्कआउट सेशंस किए होंगे, रनिंग सेशंस किए होंगे, और मे बी आप में से कोई लोग प्रोफेशनल रनर्स भी होंगे। तो अगर आपके पास कोई टिप्स है, फील फ्री टू कमेंट इट डाउन, और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका बेस्ट टाइमिंग क्या है 5 किलोमीटर्स का और 10 किलोमीटर्स का। आई वुड लव टू नो दैट। दैट वॉज ऑल इन द सेकेंड पॉइंट। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज योर स्लीपिंग पैटर्न्स। तो स्लीपिंग पैटर्न्स को ट्रैक करने के लिए वी हैव टू यूज अवर MI Fit ऐप। So guys, let's open the MI Fit app on our mobile device. यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। ये जो ग्राफ है वो आपको हर मॉर्निंग अवेलेबल होगा अगर आप MI बैंड यूज़ करोगे या कोई भी बैंड यूज़ करोगे। ये जो है वो आपके हर रात के स्लीपिंग डेटा का एनालिसिस है, इन शॉर्ट आपके स्लीपिंग पैटर्न्स का ग्राफ है। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको इसमें कुछ चीज़ें दिखाई देगी, जैसे कि आपका सोने का टाइमिंग, आपका जगने का टाइमिंग, आपकी लाइट स्लीप, डीप स्लीप। लाइट स्लीप मतलब है कि आपकी नींद जो थी वो कच्ची थी, डीप स्लीप की आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी थी, और कुछ और पैरामीटर्स, कुछ ग्राफ्स जो आपको बाकी MI Fit बैंड यूज़र्स का कंपैरिजन, उनके बीच का कंपैरिजन शो करेगा। एंड अ पार्ट ऑफ दैट बहुत सारे अदर पैरामीटर्स हैं जो कि बहुत हेल्पफुल है। सो गाइज दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू से यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कि फिटनेस बैंड का रिव्यू चाहिए और फिटनेस बैंड को कैसे यूज़ करते हैं उसका रिव्यू चाहिए। और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे एक स्कूल का मेरा फ्रेंड है, उसने भी मुझसे पर्सनली ये पूछा, तो आई वॉज लाइक वेरी श्योर कि हाँ मुझे वीडियो करना है। सो दैट्स इट। थैंक you so much for watching this video. Stay fit, stay strong. I will see you next Saturday, 8 p.m. Good night. Gimme what I like. Gimme what I need.